today let's start with chapter number 11, work of energy. In this chapter we will study about effects of force, types of forces, work के बारे में, energy and its forms के बारे में. Now force and energy are terms we usually use for our daily life. Let us do this short exercise. Look at the picture given below or complete the sentence. आपको इन sentences को complete करना. Most of the actions that we perform in our daily lives involve pushing or pulling something. As we push the pedals of a cycle to enjoy the ride, a force pulls a cart to move it. We can say that push or pull of an object is called force. So push and pull उसे क्या कहा जाता है? Force कहा जाता है. ठीक है? Now effects of force. Effect क्या है force के? पहला है we cannot see a force but we can see its effect. अब कुछ हम examine करते हैं कि object पे कैसे effect डालता है. It moves a stationary object. It stops a moving object. देखो जो रोका हुआ ऑब्जेक्ट है, इस पर आप धक्का लगाओगे तो मूव करेगा. कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको आप पकड़ लेंगे तो वो स्टॉप कर देगा. इट मेक्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, उसके साइज को भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्सेस. पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की. व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर एन आयरन ऑब्जेक्ट, say the iron nail which attracts the nail towards it. This is because the fact that magnet has a force is called magnetic force. Next is electrostatic force. It is result of slow moving electrical charge. A comb when rubbed with hair, उसको अगर आप small pieces को पेपर के लेते आओगे तो वो स्टप करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा. Because the charge comb induces an opposite charge in the paper which we stuck to a comb. Next is gravitational force. Everything that we throw up come down on the earth. क्यों होता है ये? क्योंकि force existed by the earth on the object. इसको हम gravitational force कहते हैं. It is pulling down of force on the earth. Next is frictional force. आप बॉल को रोल कर रहे हैं, ठीक है? It stopped after some time due to force of friction. ये flow करता है, slow करता है down moving object. As we are able to walk of the frictional force. Vehicle are stopped due to frictional force. उसको फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज buoyant. इफ वी पुश डाउन अ मड फ्लोटिंग ऑन वाटर वी फील अपवर्ड थ्रस्ट. और जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है, पुश होता है, उसको क्या कहा जाता है? buoyant फोर्स. क्या कहा जाता है? buoyant. When you read a book you are not doing any work, but when you pulled a chair it is said that work has been done. And when we apply force to move an object, ठीक है, we do work. But when we push an almirah and it does not move, no work is said to be done. So work is said to be done only when applied force causes change in the position of the object in the direction of applied force. Energy and its energy क्या है? Related to do work. We require energy to perform many activities, playing, running, reading. सबको किसकी नीड होती है? एनर्जी की. ठीक है. We can produce a force to carry out work. आप क्या करते हो? फोर्स प्रोड्यूस करते हो अगर आपको कुछ वर्क कैरी आउट करना हो. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सबसे पहले हम हीट एनर्जी पढ़ेंगे. एनर्जी जो आपको किससे मिलती है? सन से. उसे हीट एनर्जी कहते हैं. सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ हीट. इट प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल, जैसे वुड, कोल, इनको हम बर्न कर देते हैं. व्हेन वी कुक फूड वी यूज हीट एनर्जी. लाइट एनर्जी, एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम लाइट. जैसे लाइट एनर्जी, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ट्यूब हो गया, ये क्या? सोर्सेज ऑफ लाइट. सन भी क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट. जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन करता है किस पे? इलेक्ट्रिक एनर्जी. नेक्स्ट इज काइनेटिक, जो हमें मूवमेंट से मिलते हैं, जैसे मूविंग कार, मूविंग ट्रक, मूविंग टॉय, इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं बॉडी में ड्यू टू इट्स पोजीशन, जैसे वाटर इन अ टैंक. क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल. मैकेनिकल, दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन. विंड, पावर टू मूव थिंग्स. दिस पावर इज कॉल्ड विंड एनर्जी. इसका यूज करता है विंड मिल्स में. विंड मिल्स का यूज कर जाता है क्या जनरेट करने में? पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने. नाउ सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सन. इसको सोलर एनर्जी कहा जाता है. इससे हम खाना बनाते हैं सोलर कुकर से. वाटर को भी हम बॉइल कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं. ठीक है. एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कोल कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड. When we burn it, we get heat and light energy. The heat is then converted into electrical energy and energy just changes its form. वो जो energy होती है वो इस form को change कर देती है. ठीक है? Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.